Yes, so pass journal entries and show the balance sheet of the company after giving effect to the above. So Vaibhav Limited gives the following ledger balances as at 31st March 21. PP investments market value दी है, current assets P&L debit balance share capital 6% cumulative preference shares 5% debentures creditors provision for tax. The following scheme of internal reconstruction is sanctioned. All the existing equity shares are reduced to 40 each. मतलब 60 भूल जाना है. Equity share capital to equity share capital to capital reduction. Correct. Correct. 40 or 60 capital. Equity share capital 100 to equity share capital 40 to capital reduction 1 crore 20 lakh आ गया. नरेशन आता है ना? हाँ, narration. Being conversion of equity share capital of 100 is into 40. Practice भी करते तो मुंह से बोल देते नहीं. हाँ. As per reconstruction scheme. All preference shares are reduced to 60 each. 6 cumulative preference share account debit 100 rupees to 6% cumulative preference share account debit to 60 to capital reduction. हाँ, preference share capital account. हाँ, preference share account नहीं. हाँ, capital word लिखना है. हाँ हाँ. So इधर preference shares वालों ने कितना भूलना है? 40 भूल जाना है. Third, rate of interest on debentures increased to 6%. The debenture holders surrender their existing debentures of 100 each and exchange the same for fresh debentures of 70 each for every debenture held by them. 5% debentures to 6% debentures. To capital reduction ना हो गया. 5% debentures account debit 80 लाख है क्या वो? मतलब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे? 80,000. 80 लाख. हाँ, तो 80,000 होंगे ना. सो 80,000 इंटू 70 करो. 56 लाख. ये नए मिल रहे हैं ना. 6% डिबेंचर्स ऑफ 70 एंड 24 लाख भूल जाना है उनको. ठीक है. फोर्थ, PP to be written down by 20%. Capital reduction to PP. हाँ, capital reduction to PP. Current assets are to be revalued at 90 lakh. Current assets कितने हैं? 2 crore. मतलब 1 crore 10 lakh. Capital reduction to current assets. Investments are to be brought to their market value. Capital reduction to investment. To investments 1 lakh का. Next, one of the creditors of the company to whom the company owes 40 lakh decides to forgo 40% of its claim. The creditor is allotted with 60,000 equity shares of rupees 40 each in full and final settlement of his claim. Creditors account debit to capital reduction account to equity share capital. Correct. Creditors account debit 40 lakh. 40 lakh to 40 lakh 40% 16 lakh का फॉरगो हो गया कैपिटल रिडक्शन में. हाँ, 24 लाख के शेयर कैपिटल मिल गए. करेक्ट. One of the creditors of the company to whom the company owes 40 lakh. So creditors account debit 40 lakh आ गया. The taxation liability is to be settled at 3 lakh. Capital reduction to provision for taxation. प्रोविजन कितनी करके रखी थी? 2 लाख की. बट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी सेटल हो गई 3 लाख की. सो ये जो प्रोविजन है वो डेबिट करो 2 लाख से. कैपिटल रिडक्शन 1 लाख से डेबिट टू लायबिलिटी फॉर टैक्स एंड देन लायबिलिटी फॉर टैक्स टू बैंक. या डायरेक्टली इधर भी टू बैंक लिख दिया तो भी चलेगा इधर. नेक्स्ट, it is decided to write off the debit balance of P&L to capital reduction. कैपिटल रिडक्शन टू P&L. हाँ, डेबिट बैलेंस था ना तो क्रेडिट जाएगा P&L को. एंड देन बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड बैलेंस शीट आ जाएगी ना. यहाँ पर देखो, आउट ऑफ द अबाउ 60,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. मैम वो
प्रॉब्लम जो होता है वो डिवेंचर्स में, हर क्वेश्चन में डिवेंचर्स के अलग अलग पॉइंट होते हैं, तो डिवेंचर्स वाले में प्रॉब्लम होता है। इंटरप्रिटेशन का गेम है वो पूरा। जैसे ये वाला तो इजी था, पिछले वाले क्वेश्चन में डिवेंचर्स में था, पॉइंट था, अच्छा खासा पॉइंट। हाँ, तो वो बार बार इंटरप्रेट एंड प्रैक्टिस करके आ जाएगा। 6 में भी जर्नल एंट्रीज और क्या करना है, बैलेंस शीट एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी करना है। ओवरव्यू कर रही हूँ बैलेंस शीट। अभी बढ़ो। एडजस्टमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड गिव अ 30% of their capital in exchange for allotment of 11% debentures to them. 30% of their capital. Capital account debit to 11% debentures account to capital reduction. Correct. So 8% preference share capital account debit to 11% debenture to capital reduction. So preference shareholders would give up 30% of their capital. हाँ, so 6 लाख का कैपिटल है प्रेफरेंसेस का, उसका 30% गिव अप करना है, मतलब भूल जाना है 1,80,000, इसलिए वो कैपिटल रिडक्शन को गया। एंड जो रिमेनिंग 4,20,000 है उसके लिए डिबेंचर्स अलॉट हो रहे हैं उनको। सो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 11% डिबेंचर्स टू कैपिटल रिडक्शन। सेकेंड, डिबेंचर होल्डर्स क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख का, बट डिबेंचर होल्डर्स 12 लाख के हैं, तो 3 लाख उनको भूल जाने हैं। 9% डिबेंचर्स टू प्लांट मशीनरी टू कैपिटल रिडक्शन। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल्स लेके जा रहे हैं ना इन्वेंट्री, 5,92,000 के ट्रेड पेएबल्स है एंड इन्वेंट्री है 5 लाख का लेके जाना, तो 92,000 का कैपिटल। इन्वेंट्री इक्वल टू बुक वैल्यू 5 लाख का है, बैलेंस शीट में 14 लाख का है, लेकिन बुक वैल्यू 5 लाख का है, उस पे ले जा रहे हैं। और ट्रेड पेबल्स टोटल 592 है, तो ट्रेड पेबल्स टू इन्वेंट्रीज टू कैपिटल रिडक्शन। करेक्ट, ट्रेड पेएबल्स टू इन्वेंट्री टू कैपिटल रिडक्शन 92,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टू बी रिड्यूस्ड टू मार्केट कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, 13,000 कैपिटल रिडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, the company would issue 11% for 3 lakh. बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स 3 लाख। ऑगमेंट मतलब टू इंक्रीज, ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल मतलब कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर्स फॉर 3 लाख। सो 3 लाख डिबेंचर होल्डर से आएंगे ना पैसे, सो बैंक बैलेंस कंपनी का बढ़ जाएगा। सो ये क्यों कर रहे हैं, एंड ऑगमेंट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टू एंड इंक्रीज इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। 3 लाख आने के बाद बैंक ओडी सेटल हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। देन कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस ट्रांसफर किया है कैपिटल रिजर्व को, एंड सेटलमेंट इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक, बैंक का बैलेंस आ गया ना। सो आफ्टर सेटलमेंट ऑफ बैंक ओडी, इसको अंडरलाइन करो एंड लिखो वहां पर एंट्री, क्या एंट्री है, बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है क्या बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000 दिया हुआ है। हाँ, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओडी कितना दिया है, 150। हाँ, उसका पेमेंट। सो एंट्री लिखो बैंक ओडी टू बैंक 1,50,000। मैम जैसे एंट्रीज कर रहे हैं, तो एक हम लोग जब एक लास्ट में सारी एंट्रीज हो जाए तो हम लोग रफली एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के देख सकते हैं ना कि कितना कैपिटल रिजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं करना है रफली मैम, रफली रफली भी नहीं, सारे क्रेडिट की टोटल लेनी है कैलकुलेटर पे, माइनस सारे डेबिट्स, आ गया कैपिटल रिजर्व का बैलेंस। टाइम ही नहीं है रफली करने को भी। ओके,
वो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट तुम्हारी गलत गई तो आधा मार्क ही जाने वाला है, या मैक्सिमम 1। उसके लिए कहाँ पे वो रफ में बना रहे हो, बाकी के एंट्रीज तो करेक्ट आएंगे ना, सो मत बनाओ। 7 में भी जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट है। इन्वेंट्रीज ऐसा क्यों दिया है 14 लाख माइनस विच एवर इज लो, नहीं मैम वो बुक वैल्यू पे था ना, सॉरी हाँ 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 तो 9 लाख का तो बच ही है ना इन्वेंट्री, 14 लाख का था इनके बैलेंस शीट में, हाँ और 5 लाख का बुक वैल्यू पे हाँ वो दिया, ठीक है। सेवन में जर्नल एंट्रीज बैलेंस शीट, इट वॉज डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रिजोल्यूशन वॉज पास्ड एंड sanctions were obtained from appropriate authorities. Accordingly, it was decided that each share is subdivided into 10 fully paid up equity shares of 10 each. अभी 100 का एक शेयर है, अभी वो बोल रहे हैं एक शेयर 10 में डिवाइड करो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी वाला है आफ्टर सब डिविजन each shareholder shall surrender to the company 50% of his holding for the purpose of reissue to debenture holders and trade payables as necessary. So share capital account debit to share surrender account 5 lakh. सरेंडर बी वाला चल रहा है हमारा एडजस्टमेंट। नहीं मैम, शेयर सरेंडर अकाउंट क्यों आ रहा है, कैपिटल रिडक्शन नहीं, ईच शेयर होल्डर शल सरेंडर, रिड्यूस नहीं की है वो अमाउंट, सरेंडर की है, मतलब वो 50% अमाउंट अभी इनको जाएगी डिबेंचर होल्डर्स एंड ट्रेड पेएबल्स को, ठीक है। सो ये अलग एंट्रीज हम करेंगे हाँ एग्जाम में। अगर आपको क्लिक नहीं हुआ, ए एडजस्टमेंट जो थी उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ना, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है हाँ एग्जाम में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू, हाँ ब्रैकेट में 100 एंड यहाँ पर ब्रैकेट में 10। हाँ ये सब डिवीजन कर लिया ना हमने, एंड अमाउंट कितनी थी 10 लाख, हाँ हाँ, तो वो वही रहेगी ना। एंड देन नहीं, मैं सेपरेट कर रही हूँ। फिर यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 नॉमिनल वैल्यू वाला, क्योंकि वो हमें बी पढ़ने के बाद समझा ना कि 5 लाख सरेंडर हो रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ देखो, फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10 वाला क्रेडिट हुआ 10 लाख से, एंड यहाँ पर 5 लाख से डेबिट हुआ। सो अल्टीमेट क्रेडिट 5 लाख का ही गया है। सो आप एग्जाम में ये ए एडजस्टमेंट की ये एंट्री, बी एडजस्टमेंट की ये एंट्री, और उन्होंने दी है वो कंबाइंड एंट्री। अभी सी का बताओ। 1000 shares of ₹10 each shall be converted into 12% preference shares of ₹10 each fully paid up. हाँ, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख का, ठीक है। The claims of the debenture holders shall be reduced by 75%. In consideration of the reduction, the debenture holders shall receive preference shares of ₹1 lakh, which are converted out of shares surrendered. डिवेंचर्स 12% डिवेंचर्स अकाउंट, हाँ 2 लाख का 75%, हाँ टू प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000, क्योंकि बाकी क्या करना है, द क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। कितना आता है 1,50,000
एंड इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स भी है ना वो 24,000, तो उसका भी 75%। 18,000। हाँ, तो ये दोनों कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर किया उन्होंने, ये भूल जाना है ना उनको। ट्रांसफर्ड 75% ऑफ द क्लेम्स टू डिबेंचर होल्डर्स, transferred 75% of the claim of debenture holders to reconstruction account in consideration of which 12% preference shares are being issued out of the share surrender account as per capital reconstruction scheme. So ये जो उन्होंने वेव ऑफ किया ना 1,68,000, तो उसके ऑलरेडी आपने प्रेफरेंस शेयर्स उनको दिए हैं यहाँ पर। हाँ, वो उसी में है। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये इनको ही दिया है आपने। द डिबेंचर होल्डर्स शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड, मतलब ये ऊपर के 1 लाख सी में ही कन्वर्जन हुआ ना, वो शेयर सरेंडर प्रेफरेंस शेयर्स में आ गए 1 लाख के, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स किसको मिले? डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, सो सी की एंट्री आपने ऑलरेडी की थी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, देन 75% क्लेम इन्होंने रिड्यूस कर दिया ना, क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%। सो क्लेम सिर्फ फेस वैल्यू क्लेम नहीं था, प्रिंसिपल अमाउंट, उसके साथ इंटरेस्ट का भी क्लेम है। सो आपने वो 24,000 का 75%, 18,000 भी इंटरेस्ट लिया। ई बताओ। Trade payables account debit to equity share capital account to capital reduction। वेरी गुड। 72,000 के ट्रेड पेएबल्स है, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डाला है उन्होंने 72,000, एंड शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000, ये जो इनको इशू हुए ना ट्रेड पेएबल्स को। ओके, सो एक्चुअली ट्रेड पेएबल्स टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एक्चुअली 50% है, बट आपको वो पूरा 72,000 ट्रांसफर करना पड़ता है। इनको 50% के लिए इक्विटी शेयर्स इशूड है, इक्विटी शेयर्स आर बीइंग इशूड इन कंसिडरेशन ऑफ द बैलेंस, तो जो 50% है मतलब वो अमाउंट में 36,000 हो रहा है, उसकी एंट्री अलग है। ये शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है देखो, आर सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर। सो जब भी आउट ऑफ शेयर सरेंडर, ये हाईलाइट करके रखो, जब भी ऐसे एडजस्टमेंट है आउट ऑफ शेयर सरेंडर, सो कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? शेयर सरेंडर अकाउंट। अगर ये वर्ड्स नहीं होते तो आप एंट्री करते ट्रेड पेएबल्स अकाउंट डेबिट 72,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36 टू रिकंस्ट्रक्शन 36, ये आता है आपका कैपिटल रिडक्शन टू P&L, एंड द शेयर सरेंडर एंड नॉट री इशूड शैल बी कैंसल्ड, तो बाकी के कैपिटल रिडक्शन को ट्रांसफर कर दिए। हाँ, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व को डाल दिया। लास्ट इलस्ट्रेशन बाकी है। आपको ब्रेक चाहिए 5 मिनट? क्या करते हैं? क्या करना है इसमें भी? जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। नॉर्मल है ना बैलेंस शीट? फर्स्ट का क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस टू 2.5 पर शेयर एंड द इक्विटी शेयर्स टू 1 पर शेयर। Preference share to capital reduction। वेरी गुड। और equity share to capital reduction। 10 का था पहले इक्विटी शेयर, वो 1 पे आया 9 रिकंस्ट्रक्शन, और ये 10 का 2.5 पे आया 7.5
रिकंस्ट्रक्शन को। सेकंड, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एरियर्स ऑफ डिविडेंड ना। $1,50,000 पे 8% कितना आ रहा है? 12,000 into 4, 48. हाँ 48,000। सो देखो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसे कुछ लेजर अकाउंट नहीं है, बट वो प्रेफरेंस डिविडेंड जो 4 इयर्स के है एरियर्स में, उसके अगेंस्ट आपको इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 48,000। ठीक है, नेक्स्ट। Property at an aggregate figure of 75, paid the balance after paid to the company after deducting the amount due to them. 50,000. Debenture account debit to interest on debentures account debit. Debentures account debit, interest on debentures account debit. 55 to capital reduction to freehold. करेक्ट करेक्ट। Bank. कहाँ पर है वो डिबेंचर्स का? मैम ऊपर, हाँ। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 50,000, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5,000। The debenture holders took over the freehold property at an agreed figure of 75,000. So freehold property 1,20,000 की है, so to freehold property 1,20,000 एंड उन्होंने इसको एग्री किया था 75,000 के लिए ना, तो 55,000 यहाँ पर पेमेंट हो गया प्लस 20,000 का उनको उनसे पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट, एंड बाकी का रिकंस्ट्रक्शन में गया। यहाँ पर है पेड द बैलेंस टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। सो देखो डिबेंचर होल्डर्स टुक ओवर द फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी एट एन एग्रीड फिगर ऑफ 75,000। मतलब डिबेंचर होल्डर्स क्या लेके गए? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने को लेके गए? 75,000। हाँ, उनका क्लेम था, तो बाकी का उन्होंने पैसा दिया कंपनी को, तो कंपनी रिसीट दिखाएगी ना 20,000 का। सो एंड पेड द डिबेंचर होल्डर्स टुक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट एन एग्रीड फिगर ऑफ 75,000 एंड द डिबेंचर होल्डर्स पेड द बैलेंस 20,000 टू द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। उनको अमाउंट ड्यू कितनी थी? 55,000। सो आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ड्यू टू देम अंडरलाइन करके वहां पर 55,000 ये डिडक्ट करने के बाद बैलेंस 20,000 था। ओके, लिखो वहां पर, अभी याद है? यहाँ पे वो कैलकुलेशन लिखी नहीं, इंटरप्रिटेशन के इधर लिखो, एडजस्टमेंट के इधर। इसको इंटरप्रेट कैसे किया? बाद में कोई पूछेगा तो अरे तब आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। एंड बैलेंस टू द पेड बैलेंस, कितना बैलेंस पे किया? तो ये 55, ये 20, ऐसे 75 हुआ, बट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,20,000 की है, तो 45,000 के इधर लिखो बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट पढ़ो। प्लांट एंड मशीनरी रिटर्न डाउन टू 1 lakh। P&L to capital reduction to plant machinery. Trade investment, non-trade investment was sold for 32,000. लॉस है।
8,000 का. बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 32,000, 8,000, 40,000. Goodwill and obsolete stock included in the value of inventories of 10,000 were written off. Capital reduction to goodwill, और contingent liability of which no provision had been made, was settled at 7,000, and of this amount 6,300 was recovered from the insurance. insurance debit, capital reduction debit to contingent. रिकंस्ट्रक्शन 700. बैंक से 6,300 मिल गए, मतलब जहां पर तुम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बोल रहे थे ना, सो वो रिसीवेबल है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करना है. रिकवर्ड है सो पैसे आ गए हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट 6,300, बाकी लॉस हुआ 700 टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 7,000. ओके, सो ये हो गए ना सारे इलस्ट्रेशंस. सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप करने वाले हो घर पे ट्राई. कल छुट्टी है ना, संडे. 9, 10, 11, 12 4 है. जनरल एंट्रीज रखी गई. मंडे को कंसोलिडेशन. चलो, और मैं क्वेश्चन बैंक भी भेजती हूँ.